Hello everyone. So dear bodies, as you know, this is Master Satya, and you people call me Sambalpuriya Pila. So dear friends, today I have come up here to tell you something about English. And today my motive is to teach you that how you can develop your English habit. Therefore, I have brought us a story, a very interesting story from NCERT book. Okay, and in this video, I shall be teaching you in bilingual method, and I shall be telling you both English and Hindi. I will be speaking of here both Hindi and English to make you more convenience, make you more comfortable in understanding the thing properly. चलो ये दिखने में तो बहुत ही आसान लग रहा है, क्लास 9 का चैप्टर है, लेकिन इसमें बहुत सारे अच्छे वर्ड्स इंट्रोड्यूस किया गया है एंड यू विल हैव सम कॉन्फिडेंस टू स्पीक इंग्लिश आफ्टर रीडिंग द चैप्टर एज वेल. एंड ये बहुत ही अच्छा हैबिट है that how you can build of your vocabularies, your some ideas about the grammars and the language right itself. तो चलो मैं आपको ये सिखाता हूँ इसमें और देखता हूँ ये आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है. अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं आगे भी इस तरह का वीडियो लाऊंगा. चलो मेरे साथ पढ़ते हैं क्या इंग्लिश कैसे हम सीखेंगे कुछ. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. हाय गाइज. सो डियर फ्रेंड्स, I share the screen here and now I will begin up with you. So the chapter reads here as My Childhood, and I have brought this chapter from NCERT class 9 book. And this one is not actually a prose, and it is very quite similar with a story. Therefore I have chosen this one. ये तो देखने में प्रोज, ये तो देखने में स्टोरी जैसे है, लेकिन ये प्रोज के पर्सपेक्टिव में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है चैप्टर में. तो मैं आपको इसमें जो स्टोरी है जिसमें कि आपको मैं कुछ वर्ड्स बताऊंगा या कुछ ग्रामर्स की कंसेप्ट भी बता सकता हूं. सो डोंट वरीड अबाउट ग्रामर एंड द डिफरेंट ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट एंड द वर्ड्स एज वेल, राइट. तो आपको मैं इसलिए मैं सिखा रहा हूँ कि इंग्लिश कैसे बोल पाओगे. कुछ वर्ड्स है, वोकैबुलरी तो हमें ज़रूरी है जैसे भी करके, और ग्रामर के लिए डोंट वरी अबाउट इट. इफ़ सम स्टूडेंट्स आर वाचिंग माय वीडियो देन दे कैन बी बेनिफिटेड इफ़ आई इंट्रोड्यूस समथिंग ग्रामर हियर, राइट. सो लेट्स बिगिन. तो स्टोरी का नाम है, आप देख सकते हैं, माई चाइल्डहुड. दिस अबाउट चाइल्डहुड ऑफ समवन, राइट. लेट्स सी हु द पर्सन कुड बी. कैन यू थिंक ऑफ any scientist who have also been statesmen, some question have been asked at the very beginning and you can see here. So can you think of any scientist? कोई साइंटिस्ट का नाम बताइए. सोचिए जो कि एक राष्ट्र नायक भी थे, एक स्टेट्समैन भी थे. here it means to say so. तो who it was? This was Dr. APJ Abdul Kalam, that you know about him, whose project in space, defense and nuclear technology guided India into the 12th to 21st century, became our 11th president in 2002. So this was the question and it was the answer about that. The statement was Dr. APJ Abdul Kalam, and at the same time he happened to be a great scientist of this soil, of this land. तो डॉक्टर कलाम के बारे में बताया गया है and this is the account of Dr. Kalam, my childhood. He has himself described about his own childhood, and this story or this chapter is derived from his own autobiographical sketch, Wings of Fire. This is simply an extract from his autobiographical sketch called Wings of Fire. Autobiography means the life and events of a person written by himself or herself is called autobiography. जब कोई व्यक्ति खुद के बारे में खुद के जो लाइफ है, उसके जो इवेंट्स है, उसके बारे में लिखता है, तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है. मस्ट रिमेंबर दिस वन, दिस इज ऑटोबायोग्राफी. और इसका नाम था विंग्स ऑफ फायर. ये बहुत ही अच्छा बुक है, आप पढ़ सकते हैं.
for your extensive learning, okay, to know more vocabs, to know to broaden your horizon of thinking, right? जितना पढ़ेंगे आपका आप लोग का आउटलुक उतना ही बढ़ेगा, हम लोग का आउटलुक उतना ही बढ़ता है, हम उतना वोकेब्स फॉर्मुलेट कर पाएंगे और हम उतने ही अच्छे से लैंग्वेज बोल पाएंगे. ओके, यू नीड नॉट हैव टू हॉल्ट फॉर ए मोमेंट, यू नीड नॉट टू टेक ए पॉज बिफोर स्पीकिंग. इफ यू हैव sufficient stocks of vocabulary, then you can speak. Therefore I am introducing some chapters, some stories here, right? So आगे देखते हैं क्या बता रहे हैं कालम के जो स्टोरी हम देखते रहते हैं, क्या बता रहे हैं आगे. सो ऐसे ही शुरुआत होता है. देखिए, आई विल रीड द चैप्टर इन हिज वॉइस, राइट? तो मैं पढ़ता हूँ अभी. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state. In the erstwhile Madras state. That means to say that he was, right? This is in direct sentences. This is in direct speech, right? We have two speech, direct and indirect speech. Direct speech, right, and indirect speech. The sentence or speech which have been told by the speaker himself, then it is called direct speech. And when the direct speech is being said or reported by someone other, it's called reported speech or indirect speech. जब उनके बाद मैं बता रहा हूँ तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाएगा, और जब ये खुद बोल रहे हैं उनके बारे में तो इसको डायरेक्ट स्पीच कहा जाएगा. अगर मैं उसको इनडायरेक्ट स्पीच कराऊंगा तो कैसे होगा? देखो ना, ही वॉज बॉर्न इनटू ए मिडिल क्लास तामिल फैमिली. कहाँ पैदा हुए थे? एक मिडिल क्लास तामिल फैमिली में. इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम. आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द आर्स्टवाइल. आपको एक वोकैब मिल गया इधर. आर्स्टवाइल माड्रास स्टेट. फार्मर. आर्स्टवाइल का मतलब है फार्मर. प्रीवियसली नॉन एज माड्रास, तमिलनाडु, सम एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश, right, Karnataka was come to be known as Madras state. तो आगे उनके बारे में पढ़ते हैं. ग्रामर के बारे में हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे. तो क्या बता रहे हैं देखो. My father Jainullabuddin had neither much formal education nor much wealth. His father Jainullabuddin, ओके, इसको कहा जाता है नाउन इन अपोजिशन कहा जाता है उनके बारे में. जैनुल्लाबुद्दीन जो है कालम के पापा वही है, राइट, फादर वही है. तो इसको नाउन इन अपोजिशन यानी कि डबल इज सेम है, इक्वल टू सब्जेक्ट इन अपोजिशन कहा जाता है. आप इसको ग्रामर के हिसाब से सोच लेते हैं. हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन, वो फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं की थी. दैट मीन्स फॉर्मल एजुकेशन मतलब ही डिड नॉट हैव एनी स्कूलिंग और कॉलेजिंग. स्कूल कॉलेजिंग उनके नहीं था और उनके पास ज़्यादा पैसा और वेल्थ भी नहीं था. डिस्पाइट दीज डिसएडवेंटेजेस, इतने सारे डिसएडवेंटेजेस, इतने सारे poor circumstances के बाद भी he possessed, his father possessed great innate wisdom. great innate का मतलब है इनबर्न क्वालिटी उनके पास था, और कि वो बहुत ही नॉलेजेस थे, एक नॉलेजेस पर्सन थे. innate wisdom and a true generosity of spirit. True generosity of spirit. That man was gifted with a kind heart. जेनरसिटी का मतलब है काइंड हार्ट, और काइंड स्पिरिट, ए डीप कंपैशन, ए लव फॉर द पीपल अराउंड हिम. तो आसपास के लोगों के ऊपर उनके बहुत ही अच्छे सोच था, जेनरस थे, लोगों को हेल्प करते थे. इसको जेनरसिटी कहा जाता है. इनेट का मतलब है इनबर्न क्वालिटी. देखो बहुत सारे अच्छे वोकैब यूज हुआ है. ही हैड एन आइडियल हेलमेट. ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आसियम्मा. उनके मदर का नाम था क्या था? ना आसियम्मा थी. ओके, एंड नाउ ही इज टेलिंग दैट ही डज नॉट और ही डिड नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे. दैट मीन इट इज इन पास्ट टेंस. नाउ ही हैड ऑलरेडी सेड दिस in the past tense. So therefore when I am reporting it before you, I must have to also say in past tense. ये do not या doesn't नहीं होगा, ये क्या होगा? he
did not recall the exact number of people she fed every day। तो बहुत सारे लोगों को उनके घर में खाना मिल जाता था जो कि याद नहीं कर पा रहे। रिकल का मतलब है रिमेंबर। बट आई एम क्वाइट सर्टन दैट फार मोर आउटसाइडर एट विथ अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। फिर क्या बताते हैं आगे जाके, बट ही वॉज क्वाइट सर्टन, वो बहुत ही निश्चित है, क्वाइट सर्टन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विथ अस यानी कि देम देन ऑल अदर मेंबर्स ऑफ देयर ओन फैमिली पुट टुगेदर। देखो मैं इनडायरेक्ट कराना हूँ तो आवर हो जाएगा देयर हो जाएगा। ओके, और जो टेंस है वो भी चेंज होता रहता है। पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनाइट क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस होता है जहाँ की वो परफेक्ट नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज नहीं होता है। ओके, तो जैसे कि ही वॉज बर्न, ये देखो इसमें ही हैड बर्न नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ही हैड बर्न नहीं होगा, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये हमेशा पैसिव में रहता है और उसमें हम इनडायरेक्ट करेंगे भी तो कुछ चेंजेस नहीं होता है, इनडायरेक्ट स्पीच करने में भी नहीं चेंज होता है। हालांकि ये पास्ट इंडेफिनाइट और सिंपल में है। चलो ये बहुत ही ग्रामर हम नहीं बताएंगे। तो इसमें हमें पता चला कि ही वॉज बॉर्न इनटू ए तमिल फैमिली, राइट, in the erstwhile or in the former state of Madras, and his parents were Jainalabuddin and Asiamma, and they both were endowed with very kind-hearted and inborn wisdom उनके पास था। तो ये था उनके लाइफ स्टोरी में। मैं रिकॉल आपको याद कीजिए कि जितने सारे मैं आपको मीनिंग बताया आप उसको याद कीजिए और एंड ट्राई टू यूज़ ऑल दोज वर्ड्स दैट आई हैव स्पोकन हियर टू यूज़ इन कंटेक्स्ट, यूज़ इन योर डे टू डे कन्वर्सेशन सो दैट कैन बी रिमेंबर्ड। और इसे मीनिंग लिखने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है जब तक उसको यूज़ ना करें। तो सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं उसमें क्या सोच है। तो पहले पैराग्राफ में ही हैड गिवन एन अकाउंट अबाउट हिज पेरेंट्स के बारे में बताए है। सेकेंड में क्या बताया है, आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रेन, ए शॉर्ट बॉय, खुद के बारे में बताइए, ए शॉर्ट बॉय विथ रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स। ओके, तो ए शॉर्ट बॉय थे और खुद को अनडिस्टिंग्विश्ड बता रहे हैं। ओके, ही वॉज नॉट gifted with or endowed with good looks, right? He meant to say born to tall and handsome parents. He was very humble, he was very gentle fellow, so therefore he loved to tell about himself also in that way, and he was a very inspiring person, right? We lived in our ancestral house, they lived in their ancestral house which was built in the middle of द 19th सेंचुरी, जो कि 19th सेंचुरी में बिल्ट हुआ था। देखो बच्चों, ये जो आप सेंटेंस आ रहा था व्हिच वाज बिल्ड इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, इसको कहा जाता है, इसको क्लॉज नहीं कहा जाता है क्योंकि इसमें कमा यूज हुआ है, तो इसको क्लॉज नहीं कहते हैं, इसको कहा जाता है ना सेंटेंस कंटिन्यूटी कहा जाता है, सेंटेंस कंटिन्यूटी कहा जाता है। ये सिर्फ मीनिंग थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा है, ये कोई क्लॉज नहीं है। इसका मतलब इसको जो क्लियर हो रहा है इधर तो मीनिंग तो क्लियर हुआ, वी लिव इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस। एंसेस्ट्रल का मतलब पेरेंटल और फोर फादर्स के हाउस में रहते थे। ओके, तो सारे डायरेक्ट सेंटेंस में यूज हुआ है, तो आप डायरेक्ट सेंटेंस से ही इसको पढ़ लेते हैं। मैं जब आपको एक्सप्लेन करूँगा इनडायरेक्ट सेंटेंस में बताऊँगा। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस, इट वॉज ए सीमेंटेड हाउस और पक्का हाउस, एक बहुत अच्छा सा हाउस था, लार्ज था, मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक में बना हुआ था। ऑन द मॉक्स स्ट्रीट इन द रामेश्वरम, कहाँ था वो, ऑन द मॉक्स स्ट्रीट इन द रामेश्वरम, इन रामेश्वरम में वो था। माई ऑस्टेड फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। He again told about his father here, that his father was very austere, very simple, strict and severe. He was very disciplined person. Austere का मतलब disciplined person. He used to avoid. Used to का मतलब he was always habituated. Used to का मतलब यूज होता है, एक मॉडल है जो कि habituated है, जो कि रेगुलर बेसिस में किया जाता है, तब उसको used to लगाया जाता है, यूज होता है। Avoid all in essential comforts.
ऑल इन एसेंशियल कंफर्ट, जो कि ज़रूरी नहीं था, जो कंफर्ट ज़रूरी नहीं था, उस सारी चीज़ को अब अवॉइड करते थे, दूर रहते थे वो सारी चीज़ों से। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन एंड क्लोथ्स। इतने सारे चीज़ होने के बाद भी, जो भी होना क्यों ना, उनके पेरेंट्स, हिज फादर वॉज वेरी मच सीरियस अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ द फैमिली इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स। इसके ऊपर ध्यान था उनके, और बाकी जो सारे जो कंफर्ट चीज़ें हैं उसके ऊपर वो इतना ध्यान नहीं देते थे। ही लेड ए वेरी सिंपल लाइफ विच समटाइम कलाम्स वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड विथ, बहुत इंस्पायर्ड होते थे कलाम्स भी। और हम देखते भी है लेटर लाइफ में वो कितना ही जेंटल थी, कितने इतने ही वॉज सच एंड टॉल पर्सनालिटी, ही वॉज हैविंग ए वेरी टॉल पर्सनालिटी, ए वेरी टावरिंग पर्सनालिटी। स्टिल देन ही नेवर एवर हैड एनी सॉर्ट ऑफ ईगो इन हिज लाइफ, वेरी सिंपल एंड जेंटल फेलो थ्रू आउट हिज लाइफ। देन so he told about his father, but his family provided everything. In fact, I would say, now he loved to say, in fact, I would say mine was a very secure childhood. Kalam had a very secure childhood. He is saying that Kalam had a very secure childhood. He had a very secure childhood, both materially and emotionally. Materially का मतलब all the financial needs, इसको materially कहा जाता है, and emotionally means the parents were very good. They were very much supportive in every walks of life, in every walks of Kalam life. Kalams के जो लाइफ था उसके ऊपर बहुत ही मदद करते थे, ये बताया गया है। ओके, चलो आगे जाते हैं। राइट, तो ये देखो बहुत ही सिंपल वे से बहुत सारी अच्छी अच्छी बात बताया गया है। तो हम फैमिली के बारे में 2 ही पैराग्राफ्स में पढ़े उनके। देन हियर ही टेल्स अबाउट द, देखो व्हेन एवर आई एम डिस्क्राइबिंग, आई एम यूजिंग प्रेजेंट टेंस, ही इज सेइंग और he tells about, like, okay, while you are describing a particular events, right, that time you must use present simple, present indefinite use करते हैं हम लोग। क्रिकेट कमेंट्री होता है ना, that time you can see that way while describing a poems, right, ज़्यादातर ये poems describe करने में right, उसी टाइम भी present tense यूज होना चाहिए। ideally present tense must be preferred। तो अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बताइए। The Second World War broke out. Broke out का मतलब है happened. Okay, broke out or emerged in 1939 when I was 8 years old. When Kalam was just 8 years old. 8 years old. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. Right. Now he telling that about tamarind seeds that suddenly erupted, यानी कि hike, the price was hiked suddenly. There was a demand of tamarind seeds. Okay, tamarind seeds he used to collect during his childhood. He used to collect the seeds and sell them to a provision shop. Provision shop का मतलब वो जो सीजनल शॉप होता है, कुछ ट्रेडर होते हैं जो कलेक्ट करते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं। On Mock Street, a day's collection would fetch me or fetch him, fetched him, यानी brought him the princely sum of anna, 1 anna। कितना मिल जाता था? princely sum of 1 anna। princely just use here to give some emphasize। prince का मतलब generous amount, और ironic here इतने कम है फिर भी वो अच्छे से इसके बारे में बताए हैं। okay, this is something very ironic, very peculiar way of saying the thing, right। 1 अन्ना वो उनको मिल जाता था फिर भी बहुत खुश से बोले हैं, तो उसको princely sum of 1 अन्ना कहा गया है। My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines of Dinamani। His brother-in-law Jalaluddin would tell him stories of वर्ल्ड वॉर। उनके जो ब्रदर इन लॉ थे वो हमेशा वर्ल्ड वॉर के बारे में बता रहे थे। और बाद में क्या होता था, which I would later attempt to trace in the headlines of दिनामणि, जो कि वो अखबार में पढ़ते थे, एक
दिनमणि नाम का एक अखबार है, उतना डिटेल से नहीं बताया गया है, एक तमिल अखबार है जो कि वो ट्रेस करते थे, यानी उसको पढ़ते थे। इसमें ट्रेस देखो कितने स्टाइलिश वे में इंग्लिश यूज होता है। इंग्लिश हैज़ लॉट ऑफ मीनिंग्स, लॉट ऑफ वर्ड्स एंड दे आर यूज इन डिफरेंट मीनिंग्स एंड डिफरेंट कंटेक्स्ट में यूज होते हैं। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस लैंग्वेज। बहुत सारे लैंग्वेज में ऐसे ब्यूटी रहता है, लेकिन इंग्लिश में भी बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज कर सकते हैं हम लोग के जो भावना को बताने में। तो फिर से बता रहे हैं, आवर एरियाज बीइंग आइसोलेटेड का मतलब रिमेनिंग फार अवे फ्रॉम दैट इवेंट, वॉज कम्प्लीटली अनएफेक्टेड बाय द वार के द्वारा थोड़ा सा भी प्रभावित नहीं हुआ। बहुत दूर था ना तमिलनाडु, यू जस्ट इमेजिन तमिलनाडु टू द नॉर्थ एंड ऑफ द कंट्री। तो तमिलनाडु तो साउथ एंड है, तो इसमें कुछ प्रभावित नहीं हुआ, ये उनके अकाउंट्स में बता रही है। अनएफेक्टेड देखो, इसमें बहुत सारे प्रेफिक्स यूज हुआ है। प्रेफिक्स यूज करके हम ज़्यादातर के ये करते हैं, ऑपोजिट मीनिंग, ऑपोजिट वर्ड क्रिएट करते हैं। प्रेफिक्स इसको कहा जाता है। जो वर्ड के पहले यूज होता है उसको प्रेफिक्स कहा जाता है, और लास्ट में जो यूज होता है उसको सफिक्स कहा जाता है। प्रेफिक्स का मतलब इम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, राइट। जिसकी इधर बताया गया अफेक्टेड, अनअफेक्टेड, रेगुलर, इरेगुलर, IR पहले लगा, वो प्रेफिक्स है। सफिक्स का मतलब है आपके जो लास्ट में यूज होता है, वर्ड के किसी वर्ड्स के लास्ट में यूज होता है। कंपोज, कंपोजिशन, राइट, कंपोज, कंपोजिशन। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स होता है जो कि हम लास्ट में यूज करते हैं, इसको सफिक्स कहा जाता है। चलो, तो बाद में बता रहे हैं, बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेस बिकॉज इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल। सो सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन, इंडिया को फोर्स किया गया कि एलाइड फोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए। एलाइड फोर्सेस वॉज हेडेड बाय, आपको पता होगा हिस्ट्री अगर आप पढ़े होंगे तो, एलाइड फोर्सेस वॉज हेडेड बाय इंग्लैंड एंड फ्रांस, राइट। But soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. Something like a state of emergency was declared in the country. देखो बच्चों, ये काइंड ऑफ स्टोरी है जिसको कोई इमेजिन करके बता रहा है, कोई उनके लाइफ अकाउंट को बता रहा है। तो आप भी ऐसे इंग्लिश डिस्क्राइब कर सकते हैं। वेन एवर यू आर टॉकिंग टू सम पीपल, you may describe about yourself, about your childhood, about a particular event, about a particular इवेंट्स, मैरिज हो या पार्टी हो, इसके बारे में आप इंग्लिश बता सकते हो। दैट वे यू कैन फॉर्मुलेट सर्टन वर्ड्स एंड योर माउथ दैट वे ऑल्सो मसल विद द लैंग्वेज। मसल का मतलब यू विल बी कंफर्टेबल, यू विल मसल ओवर द लैंग्वेज, राइट। तो मसल कर सकते हो, आपके वो फिट हो जाएगा आपके माउथ में, राइट। तो ये बहुत सारी चीज़ें होता है, ट्रिक्स होता है ये सारे सीखने का। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन, तो मैं बताया। Then fast casualty came in the form of suspension of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन। halt का मतलब है स्टॉपेज, ट्रेन नहीं रुका। फास्ट कैजुअलिटी का मतलब इधर लॉसेस के बारे में बताया गया है। ये लॉस के हिसाब से यूज है, कोई डेथ, किल ऐसे नहीं है। ये कैजुअलिटी ये लॉस के सेंस में यूज हुआ है। देखो, सेंस डिपेंड करता है, सेंस के हिसाब से वर्ड का मीनिंग भी अलग अलग होता है। तो आप किसी एक ही मीनिंग आप के ऊपर स्पेसिफिक नहीं होने है, कन्फाइन नहीं होने का है, आपको यूज़ करना है डिफरेंट कंटेक्स्ट में, डिफरेंट सिचुएशन में। चलो मैं अब आगे बताता हूँ। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल, नाउ द न्यूज़पेपर हैड टू बी बंडल्ड, उसको न्यूज़पेपर को बंडल करना पड़ता था। एंड थ्रोन आउट ऑफ द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन द रामेश्वरम टू धनुषकोडी। तो उसी टाइम ट्रेन से जो आता था, जो न्यूज़पेपर आता था रामेश्वरम को, तो उसमें क्या होता था, ट्रेन तो हॉल्ट नहीं करता था, नहीं रुकता था, तो उसको ट्रेन से थ्रो करना पड़ता था, फेंकना पड़ता था, और उसके लिए कोई एक बंदा उधर खड़ा होना पड़ेगा जिसको कैच करेगा उसको। दैट फोर्स माई कज़न था उनके, शामसुद्दीन था। दैट फोर्स माई कज़न शामसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, जो कि क्या करते थे ना, न्यूज़पेपर रामेश्वरम में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड टू केच द बंडल्स एंड ही वॉज लुकिंग फॉर, यानी लुकिंग फॉर का मतलब बच्चों होता है सर्चिंग फॉर फ्रेंड्स, राइट। आई एम ए टीचर, आई ऑलवेज टीच टू माई स्टूडेंट्स, सो therefore आई एम चिल्ड्रन यूजिंग, ओके फ्रेंड्स। सो टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड टू केच द बंडल्स एंड एज इफ नेचुरली आई फील द स्लॉट।
and his cousin wanted a person who would support him in catching or in receiving the newspaper bundles. Therefore, he could find Dr. Kalam at that time. Okay, Dr. Kalam was very young, very child, right? He was a very young child at that time. So he filled the slot का मतलब that area, that position he filled it. Samsudin helped me earn my first wages. Wages का मतलब जो काम से कुछ पैसा मिलता है उसको wages कहा जाता है. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. Now, the writer, right, Dr. Kalam himself, remembering about the surge of pride, a strong feeling, he is becoming very, very emotional about remembering that incident, that how he could manage to earn his first income ऑन हिज ओन. वो कैसे खुद के जो इनकम है खुद कैसे अर्न किए थे वो उसके बारे में बताया है. एक सर्च का मतलब है इस स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जा रहा है जब उसको रिमेंबर कर रहे हैं. चलो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, मैं आपको 6 पैराग्राफ्स पढ़ाऊँगा और दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. Every child is born. Now every child is born with some inherited characteristics. Of course, everyone is unique in this world. Everyone is unique. I may be different some way, you may be different some way. And we inherit, we adopt. Inherit का मतलब we acquire since our childhood from our parents, from our success, from our ancestor. से हम कुछ क्या करते हैं, acquire करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्वायर करते हैं, कुछ गुण हैं, राइट. तो इसमें लिखा है एवरी चाइल्ड इज बॉर्न इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट. यस ऑफ कोर्स सारे लोगों का सोशियो कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशंस, इमोशनल एनवायरनमेंट अलग अलग होता है. एंड ट्रेंड इन ए सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी. एंड हमें अलग अलग वे से हम ट्रेंड होते हैं पेरेंट्स के हिसाब से. ये फिगर ऑफ अथॉरिटी पेरेंट्स को बताया गया है. फिगर्स ऑफ अथॉरिटी उनके जो ट्रेंड करने का तरीका अलग अलग होता है. आई इनहेरिटेड, तो कालम बता रहे हैं आई इनहेरिटेड, ही इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर. ही हैड इनहेरिटेड और ही हैड एक्वायर्ड द स्किल, एक्वायर्ड द क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर. फ्रॉम हिज मदर he inherited faith in goodness, inherited faith in goodness, सच्चाई के ऊपर, गुडनेस के ऊपर एप्रिशिएशन यानी लव करना, डीप काइंडनेस के ऊपर बिलीव करना, ये सीखे थे. एंड सो डीड हिज 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर. उनके जो तीनों भाई थे, बहन एक थी, वो भी वो सारी क्वालिटी एक्वायर की थी. इसके बारे में बताए है. देन ये था उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में. देन आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड. देखो तीनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स के बारे में बताया है. आई हैड पॉजिटिव के हिसाब से यूज़ हुआ है, ये पास्ट पार्टिसिपल नहीं है. आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड. दे कौन कौन थे? रामानंद शास्त्री, एक कमा यूज हुआ है. ओके, कमा यूज हुआ है इसमें देख सकते हैं. रामानंद शास्त्री, अरविंदम एंड शिवा प्रकाशन. तीनों अगर सेम क्वालिटी का वर्ड्स होगा तो कमा के द्वारा डिवाइड किया जाता है. अगर तीनों एडजेक्टिव हो, तीनों वर्ब हो, चारों वर्ब हो और लास्ट वाला कंजक्शन एंड के द्वारा जुड़ता है. ये बेसिक चीज़ें हैं, हम जानना चाहिए. जब लिख रहे हैं तो आप याद. एंड तीनों फ्रेंड्स के बारे में बताया है, रामानंद शास्त्री, अरविंदम एंड शिवा प्रकाशन. ऑल दिस बॉयज वेयर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज. हिंदू ब्राह्मण फैमिली, ऑर्थोडॉक्स का मतलब वो आर वेरी रिजिड विद रिलीजियंस बिलीव, उसको ऑर्थोडॉक्स का कंजर्वेटिव जो होते हैं. एज चिल्ड्रेन नॉन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस एमॉन्ग्स्ट आवर सेल्व्स. जब वो बच्चे थे तब वो ऐसे फीलिंग उनके जो डिफरेंसेस फीलिंग नहीं था. ओके, एमॉन्ग्स्ट आवर सेल्व्स. देखो जब इस जगह में एमॉन्ग्स्ट लिखा है, एमॉन्ग क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि उसमें वावल यूज हुआ है तो इसमें एमॉन्ग्स्ट होता है. जब वावल्स होता है आगे आने वाला है तो एमॉन्ग्स्ट होता है. ओके, बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग. जैसे
वो पालित हुए थे, जैसे बड़े हुए थे, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं था बच्चों में। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वाज सन ऑफ प्रक्षी लक्ष्मण शास्त्री, उनके पापा के नाम था प्रक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाईएस्ट स्पिरिट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। तो ये भी है जो सेंटेंस कंटिन्यूटी। कौन थे उनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स बताया गया है। लेटर ही टूक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर, उनके पापा से वो प्रीस्ट बन गए। कौन? रामानंद शास्त्री, वो प्रीस्ट बन गए। देखो इसमें देखो, आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स कैरिंग आइडल्स ऑफ लॉर्ड फ्रॉम टेम्पल टू द मैरिज साइट, ये देखेंगे आगे। एंड अरविंदम वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। अरविंदम का काम क्या हो गया? वेंटन, वेंटन का मतलब वेंट इनटू, यानी कि ही टुक द प्रोफेशन, टुक द ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन नहीं ऑक्यूपेशन, द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स का मतलब द पीपल हु विजिट ऑन द रिलीजियस पर्पस आर कॉल्ड पिलग्रिम्स, ये जानना भी जरूरी है। एंड शिव प्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कंट्रैक्टर, कैटरिंग कंट्रैक्टर बन गया रेलवे में, वो क्या बन गया? कैटरिंग कंट्रैक्टर। देखो बच्चों, हाउ हम्बल ही वाज, ही फील प्राउड एंड very a down to earth person. He mentioned the people who are very common people in his life who played a very vital role, shared a very important role in his life, in his childhood. तो वो अपने फ्रेंड्स के बारे में बताए, तो बहुत अच्छा क्वालिटी है। आप भी कभी अपने दोस्तों को भूलना मत चाहिए। इतना प्रेसिडेंट थे लेकिन फिर भी अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं, जो कि हर अच्छे ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक रहना चाहिए। ओके, तो ज़मीन आपके पैर में रहना चाहिए फ्रेंड्स, ये उनके कहना था। देखो इसमें हम इंग्लिश भी सीख रहे हैं, साथ में कितने मोरल्स है, वैल्यूज हम सीख रहे हैं। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामन कल्याणम सेरेमनी, आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विथ ए स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामतीर्थ विच वॉज नियर आवर हाउस। तो एक फिर से एक इंसिडेंट बता रहे हैं। ऑल दो ही वॉज बिलोंग टू ए विच फैमिली, ही वॉज बिलोंग टू ए वेरी मुस्लिम फैमिली, बट स्टिल देन दे पार्टिसिपेटेड इन ऑल द हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल्स। देखो इसमें ड्यूरिंग द एनुअल श्री राम कल्याण सेरेमनी, बहुत फेमस है सौदन में, हिज फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद ए स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू मैरिज साइट। मैरिज साइट को वो लेते थे, टेम्पल से मैरिज साइट तक लेने के लिए बहुत सारे बोट अरेंज करते थे, जिसमें कि वो पिलग्रिम्स को लेते थे। ये इनका काम था। उनके पापा ही वॉज इन द बोट बिजनेस में थे, उनके बोट का बिजनेस था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट वेयर द बेड टाइम स्टोरीज ऑफ माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रेन इन आवर फैमिली। So how harmonious environment he was brought up with, where all the religions were being respected. रामायण के बारे में बताए हैं, देखो मुस्लिम थे, रामायण के बारे में बता रहे थे। प्रॉफेट की स्टोरी था जो कि बेड टाइम स्टोरी था, जब सोने के टाइम ये सारे स्टोरी उनके मम्मी और मदर और उनके ग्रैंड मदर कहते थे। तो कितने जेंटल थे। देखो दिस काइंड ऑफ स्टोरी इफ़ यू रीड, दैट मीन्स रियली इट विल गिव अ लॉट ऑफ वैल्यूज एंड मोरल्स इन योर लाइफ। आप बहुत कुछ सीख पाओगे। और जो फालतू मीडिया देखने से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ गलत चीज़ें बताते रहते हैं। ऑल द इश्यूज ऑफ पॉलिटिक्स एंड ऑल द रिलीजियस अफेयर्स आर बीइंग पोलिटिसाइज दिस डेज। सारे को पोलिटिसाइज कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। नहीं तो हिंदू और मुस्लिम भाई भाई है ही, राइट। नेक्स्ट वन डे व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड एट रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। जब वो कहाँ थे, वो आज मतलब पास्ट टेंस में बताया गया है, कहाँ थे? 5th स्टैंडर्ड में थे, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में। ए न्यू टीचर केम टू आवर स्कूल, एक नया टीचर उनके क्लास को आए थे। दैट टाइम कलाम यूज टू वेयर ए कैप विच मार्क हिम एज ए मुस्लिम। मुस्लिम जो है, मुस्लिम जो उनके ट्रेडिशनल कैप है वो पहनते थे। एंड ही ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री। रामानंद शास्त्री के साथ ही बैठते थे। एक ब्राह्मण था, वो मुस्लिम थे, और दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती था, तीनों चारों की जो बहुत अच्छा दोस्ती था। हु ओवर द सैक्रेड थ्रेड, जो एक सैक्रेड थ्रेड रहता है, द ब्राह्मण यूज टू वेयर दिस, ओके, राइट। तो ये
पहनते थे, दैट इज कॉल्ड सैक्रेड थ्रेड। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमक, कुड नॉट डाइजेस्ट दैट थिंग, कुड नॉट टॉलरेट इट। देख के अरे ये मुस्लिम हिंदू के साथ बैठा है और वो भी ब्राह्मण के साथ बैठा है, ऐसे वो कुछ गलत सोच लेके आया था। ही हैड सम एविल आइडिया इन हिज माइंड। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमक ए हिंदू प्रीस्ट सॉन सिटिंग with a Muslim boy. In accordance with our class or in our social ranking, age the new teacher saw it. I was asked to go. उनको बताया गया, he was asked to, ये पैसिव में लिखा गया है, यानी कि the teacher said to him, the teacher said to him to go and sit at the last bench. ये है इसको पैसिव में ये लिखा गया है। जिसको ग्रामर के बारे में भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगा इसमें बनाने के वीडियो। और ये बहुत ही अच्छा वे है ग्रामर। आप स्पीकिंग इंग्लिश के लिए आप यही पढ़ो और ग्रामर के लिए भी आप पढ़ सकते हैं। इफ़ यू वांट देन यू कैन लर्न दिस वे। एंड ग्रामर फॉर ग्रामर आई मस्ट से यू नेवर फॉलो द बुक्स, यू ट्राई टू रीड थ्रू कंटेक्स्ट। ओके, द वे द मोर you use them in the context, the better you can perform in that areas. Okay, and I was asked to go and sit on the bench. I felt very sad. So did रामनंद शास्त्री को भी बहुत बुरा लगा. So did का मतलब उसको भी उतना ही बुरा लगा. 2 बार यूज हो चुका है so did. Okay, so did my teacher, so did my brother, so did my brothers and sister. लिखा हुआ है पहले से भी, वैसे ही करते थे. He looked utterly, visibly, utterly का मतलब visibly, utterly downcast. Okay, downcast का मतलब sad, depressed हो गए. As he shifted to my seat in the last row, the image of weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. So when the teacher tried to change or changed the sitting arrangement of Kalam's and Ramanand Shastri was very much worried, very much depressed on seeing that they were being separated because of their religion and caste. And the kind of feeling, the kind of expression that time Ramanand Shastri showed to Kalam was very had a very lasting impression in the lives of कलाम की लाइफ में बहुत ही लास्टिंग इम्प्रेशन था. वो बहुत ही उसको खुश हो गए थे, बहुत ही याद किए थे उसके बारे में. तो इट बिकम्स ए वेरी लॉन्ग वीडियो, सो वी शैल कंटिन्यू. इफ़ यू एन्जॉय दिस वन देन यू टेल मी, देन आई विल टीच यू मोर अगेन एंड अगेन ऑन दिस. एंड बिफोर आई मस्ट कंक्लूड दिस वन, I will tell you that how you would do. After reading this one, you try to speak on yourselves that what you remember that thing. You try to summarize what ideas you got from the lesson, okay, and what kind of vocabularies you received and what basic ideas of grammar you gained from this lesson. You try to remember them and use them in the context and write the difficult words, right? Not difficult words, the key words that you come across here, and write in the comment box with their meaning and try to write a sentence as well. So thank you very much. We will meet again with the second part. ये फर्स्ट पार्ट गया, सेकेंड पार्ट में आपको फिर से पढ़ाऊँगा. अच्छा लगा तो मैं इसी सीरीज कंटिन्यू करूँगा. तो चलिए, बाय फॉर नाउ स्टूडेंट. थैंक यू everyone for listening and studying with me.